Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss postulates of special theory of relativity as well as we will discuss the derivation of Lorentz transformations. इससे पिछले लेक्चर में बच्चों हमने माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। जब माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का नेगेटिव रिजल्ट हमें मिला तो उसके बाद आइंस्टाइन ने यहाँ पे हमें दो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए। According to first postulate, all the laws of physics are same in all inertial frames of reference. मीन जो नेचर ऑफ लॉज है वो सभी inertial frames में सेम रहेगी। And second point is the velocity of light in vacuum is constant. और अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें it will be a constant and it is not dependent upon the relative motion between the source and the observer, और ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के दौरान एक डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ लाइट c प्लस वी ली थी और एक डायरेक्शन में c माइनस वी ली थी, और बाद में हमने नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट से देखा it will be same in all the directions and it will be constant. So now using these postulates we will derive the Lorentz transformations. So what are the Lorentz transformations? The mathematical equations which relate the space and the time coordinates of an event occurring in two different frames, and इनमें से एक फ्रेम दूसरे के मुताबिक कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। जिसे फॉर एग्जाम्पल what we have in this case, suppose this is a frame S, we have x, y and z coordinates and this frame is S frame. Suppose we have one more frame and that frame is moving along x direction. This is x dash, y dash and z dash, and this frame is moving in x direction with the velocity v, and suppose this frame is S dash frame. If we want to observe any event that is occurring in the frame S as well as in the frame S dash, suppose the event is occurring at the point P, and with respect to frame S, let the coordinates are x, y, z and the time coordinate is t, and now the same point P according to S dash frame is given by x dash, y dash, z dash and t dash coordinates. And what is the relation between x, y, z and t and x dash, y dash, z dash and t dash coordinates? And the relation between these two type of coordinates is called as the Lorentz transformations. So this is very important article for the special theory of relativity. So we will derive these Lorentz transformations. So now again I am drawing the same diagram. Suppose we have two frames, उनमें से एक frame है S, that is this is S frame. These are the x, y, z directions. This is the origin O. And we have another frame that is suppose S dash having the directions x dash, y dash, and this is the third direction that is z dash, and this is the origin O dash. Suppose this frame is moving with the velocity v, means S dash frame is moving with the velocity v with respect to S frame. Suppose we have a point P which lies in frame S and S dash. Suppose initially both the frames are at the point O. Suppose at time t equal to t dash equal to 0, that point O and O dash coincides. Means जब टाइम t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब ये फ्रेम S डैश मूव करना स्टार्ट हुआ एट दैट टाइम हमारा
एस फ्रेम में भी 0 है और टाइम हमारा टी एस डैश फ्रेम में भी 0 है, उस टाइम ओरिजिन O एंड ओरिजिन O डैश both are at the same point, means basically the origin O dash is at the point O। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फ्रेम S डैश मूव करना स्टार्ट हुआ along x डायरेक्शन, तो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। O पॉइंट वहीं पे है, बट द पॉइंट O dash is moving along x direction with the velocity v। So this type of two frames are there। Suppose इन द फ्रेम S एक रेडिएशन या एक लाइट हम ट्रांसमिट करते हैं टुवर्ड्स द पॉइंट P। सपोज दिस इज द लाइट विच इज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द पॉइंट P। इट रीचेज फ्रॉम O to P इन द टाइम T। T is the time from O to P। सिमिलरली हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि एक रेडिएशन हमारे पास आई फ्रॉम O डैश अप टू P एंड इसका टाइम है, सपोज द टाइम इज T डैश। सो T डैश इज व्हाट, T डैश इज द टाइम फ्रॉम O डैश टू P। क्लियर। सो अब हम इसमें कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स। सपोज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, t according to S frame, and the coordinates of this point P are x dash, y dash, z dash and t dash according to the frame S dash। So x, y, z and t are the coordinates according to S frame, and x dash, y dash, z dash and t dash are the coordinates according to S dash frame। So now we will develop a relation between these two type of coordinates in S and S dash frame by using some transformations which are called as the Lorentz transformations। So सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम इक्वेशन ऑफ OP लिखें, what is OP? OP is the distance traveled by a light in S frame from O to P, and what is the time taken from O to P? It is t। So distance is what? It is velocity into time। So c is the velocity of light, t is the time taken from O to P, so this distance is simply c into t। And according to the S frame, what are the coordinates? Coordinates are x, y, z, t। And what are the coordinates of the origin? These are 0, 0, 0। So now what is the position vector OP? It is x square plus y square plus z square। So I can write it as x square plus y square plus z square minus c square t square, this is equal to 0, and this is our equation number 1, and this is the equation in S frame। Now similarly we will write down the equation for the S dash frame। In frame S dash, the distance is O dash P, which is the distance traveled by the light in the S dash frame from O dash to P, and it is how much? C into T dash, because C is the velocity of light, and we have already supposed according to the special theory of relativity that the velocity of light will remain same in the two frames। So S frame में भी हमने उसकी velocity C ली और S dash frame में भी उसकी velocity C होगी, but time S frame में O to P था T, but O dash से P का time in S dash frame is T dash, so this distance will be CT dash, and according to the coordinates its distance will be x dash square plus y dash square plus z dash square। So we have this formulation। तो इस इक्वेशन को अगर हम खोल के लिखें, so it is x dash square y dash square plus z dash square minus
c square t dash square that is equal to 0 and this is equation number 2. और अगर हम बात करें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की, सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत क्यों पड़ी. अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस व्हाट वी हैव सीन, x dash is equal to x minus vt, y dash is equal to y, z dash is equal to z. और अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस को 2 नंबर इक्वेशन में रखें, सो x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t डैश स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0. आई एम कॉलिंग दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 में ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस रख दें तो हमारा कुछ आंसर इस तरह से आएगा, x माइनस वी टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है ये बन रही है फॉर एस फ्रेम, बट इट इज़ नॉट रिजेंबलिंग विद द इक्वेशन नंबर 1. So this equation 3 is not in agreement with equation 1. So we need more equations. Means Galilean transformations are not applicable in this equations. तो हमें इसीलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ी. तो हम अब क्या करेंगे, उसी डायग्राम को लेके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आगे बढ़ के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस बनाएंगे. हमारे पास 2 फ्रेम्स हैं, s एंड s डैश. s रेस्ट पे है, s डैश मूविंग विद द वेलोसिटी v अलोंग x डायरेक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे 2 तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y, z एंड t, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश. s कोऑर्डिनेट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो विदाउट डैश हैं, s डैश फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो विद डैश हैं. तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशंस जो है लीनियर सपोज करेंगे बिटवीन s एंड s डैश फ्रेम. So we will suppose that x dash is ax minus bt और y एंड z के अंदर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारी फ्रेम है दैट इज़ मूविंग अलोंग x डायरेक्शन ओनली. इट मीन्स दैट जो y डैश एंड y है वो सेम रहेंगे एंड सिमिलरली जो हमारा z और z डैश है वो. और अगर हम इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करें तो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा है, द नेचर ऑफ ऑल द इक्वेशंस विल रिमेन सेम. तो उसमें हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू ए एक्स डैश प्लस बी टी डैश. मीन्स s और s डैश फ्रेम से अगर हम 2 फ्रेम से डिफरेंट देखें तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे. अगर हमने s से s डैश फ्रेम में जाना है तो हम 1 नंबर रिलेशन यूज़ करेंगे. अगर हमने s डैश फ्रेम से s की तरफ जाना है तो हम 2 नंबर रिलेशन यूज़ करेंगे. जो हमारी लाइट वेव है जो O से P तक जा रही है, इट इज़ इन द टाइम t, सो वी विल सपोज दैट इट इज़ c t. एंड अगर हम लाइट देखें इन द फ्रेम s डैश विच इज़ मूविंग फ्रॉम O डैश टू P, तो उसके लिए डिस्टेंस होगा x डैश विच विल बी इक्वल टू c इंटू टी डैश. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो इन चारों इक्वेशंस को लेके हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस डिराइव करेंगे. तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में एक कंडीशन लेते हैं, लेट x डैश दैट इज इक्वल टू 0. अगर हम x डैश 0 लेते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, ax minus bt that is equal to 0. So ax is equal to bt and therefore you will get x upon t that is b upon a. Means x upon t क्या है, that is the velocity of the O dash with respect to O frame. So O dash O के मुताबिक कितनी velocity से चल रहा है, it is moving with the velocity v.
तो हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन टी, दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू b। तो हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, b इज इक्वल टू a इंटू बी। इस रिलेशन को भी हम अपनी नेक्स्ट इक्वेशंस के अंदर यूज़ करेंगे। सो नाउ वी हैव बेसिकली द 5 इक्वेशंस। एक बार मैं उनको अलग पेज पे फिर से लिख लेता हूँ। सो व्हाट वी हैव, x डैश इज इक्वल टू ax माइनस bt, x इज इक्वल टू ax डैश प्लस bt डैश, x is equal to ct, x dash is equal to ct dash, and we have the fifth relation, that is v is equal to ab. This is equation number 1, equation number 2, equation number 3, equation number 4, and this is our equation number 5. Now we will put the equation number 3 and 4 in equation number 1 and 2. So what we will get? We will get x dash is what, this is c t dash is equal to a, x is what, this is ct minus b की वैल्यू है a v into t. Now we will put the values in equation number 2. So what we have, x की वैल्यू हमने रख दी c t, that is equal to a, x dash की वैल्यू आएगी c t dash प्लस b की वैल्यू है a इंटू वी इंटू टी डैश। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, c t डैश दैट इज इक्वल टू a हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचा c माइनस वी और t भी हमारा कॉमन आ गया। और इसी क्वेश्चन को देखें, c t दैट इज इक्वल टू a कॉमन c प्लस v इंटू टी डैश हमारा कॉमन आ गया। इसको 6 नंबर लिखेंगे और इसको हम 7 नंबर लिखेंगे। So equation number 6, what we can write down, t dash is equal to a upon c into c minus v into t, और 7 नंबर से हम लिखेंगे t is equal to a upon c into c plus v into t dash। तो यहाँ से हम, ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई, सपोज दिस इज 8, दिस इज 9। So now we will put the value of equation number 9. Now put the value of t in equation 8 from equation 9. So what we will get, t dash, this is equal to a upon c इंटू सी माइनस वी, टी की यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, दैट विल बी ए अपॉन सी इंटू सी प्लस वी इंटू टी डैश। और अगर हम देखें यहाँ से टी डैश से टी डैश कैंसिल हो गया हमारा, और बचा क्या, सी स्क्वायर को अगर हम एक तरफ लेफ्ट साइड ले आएँ तो ये बना ए स्क्वायर इंटू सी माइनस वी सी प्लस वी, विच विल बी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से a की जो हमारी वैल्यू आई, दैट विल बी c अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और अगर हम नीचे से c बाहर निकाल के ऊपर वाले c से कैंसिल कर दें, देन इट विल बी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। और नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ b। ऑलरेडी वी हैव रिटन, मैंने ऑलरेडी वैल्यू ऑफ b लिख रखी है, दैट इज a इंटू बी, और a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू बी। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी इक्वेशन नंबर 1 से, उसमें हमारे पास 2 अननोन कांस्टेंट थे a एंड b, और हमने अब क्या किया, वो दोनों अननोन कांस्टेंट्स को फाइंड आउट कर लिया है। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई ही है और b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। नाउ पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में फिर से लिख लेता हूँ, x डैश इज ए एक्स माइनस बी टी। तो दोनों की जो वैल्यूज़ रखेंगे, a की वैल्यू है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस बी की वैल्यू है b अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टू टी। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन करें x माइनस वी टी अलग से आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस फाइनल फॉर्म में आ गई, दैट इज x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड अगर हम y की लिखें दैट इज y इज इक्वल टू वाई डैश, और तीसरी हमारे पास जो z है दैट इज इक्वल टू z डैश। बट नाउ वी विल ऑल्सो राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर टाइम कंपोनेंट्स। x डैश इज इक्वल टू ax माइनस बी टी, x डैश हमारा है सी टी डैश, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दैट इज 1 upon under root of 1 minus v square by c square. Its value is 1 upon under root of 1 minus v square upon c square into x minus b की वैल्यू है हमारे पास a into v upon under root of 1 minus v square upon c square, और t हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है दैट इज t, राइट से आ गया सी टी डैश, रूट वाली वैल्यू हमारी कॉमन आ गई दैट इज 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर इंटू फर्स्ट टर्म में आया हमारे पास c इंटू टी माइनस v। t की हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे x अपॉन c, सो दिस इज x अपॉन c, सो वी हैव दिस वैल्यू। और अगर हम t डैश की वैल्यू फाइंड आउट करें दिस इज 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर अंडर रूट, और c से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ पे आएगा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर। तो ये हमारी स्टूडेंट्स जो फाइनल फार्मूलेशन है फॉर टाइम कोऑर्डिनेट्स आ गई। एक बार मैं सारी इक्वेशंस को फिर से लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस बन के आई हैं, सो x डैश किसके बराबर आया है, दिस इज x माइनस वी टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। y डैश किसके बराबर आया है y के, z डैश किसके बराबर है z के, t डैश किसके बराबर है t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स कई बार इनको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको गामा को सपोज कर लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला बन गया गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। वाई डैश तो वाई ही रहेगा, जेड डैश जेड रहेगा, और टी डैश का फॉर्मूला बन जाएगा गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर, एंड दीज सेट ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड एज दी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हम यहाँ पे एक स्पेशल केस करें, मैं एक बार फिर से इक्वेशंस लिख लेता हूँ। x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, y डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू जेड, t डैश इज इक्वल टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम स्पेशल केस में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस है, अगर उसमें हम एक कंडीशन ले लें दैट वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल, जो वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम s डैश है दैट इज़ वेरी स्मॉल, और अगर हम इसको स्मॉल ले लें तो v बाई सी कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज़ वेरी लार्ज, जो c की वैल्यू है दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमने जो वेलोसिटी ऑफ s डैश फ्रेम है दैट इज़ टेकन एज वेरी स्मॉल, तो v बाई सी और भी स्मॉल हो जाएगा, और हम उसको यहाँ पे भी आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं तो ये क्या बन जाएंगी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस विल बिकम
will become, तो x डैश क्या आएगा, x माइनस वी टी। और अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारी सारी टर्म्स में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, इसको हम अब निगलेक्ट कर देंगे, 1 माइनस 0 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो ये नीचे 1 आ जाएगा। सो इट मीन्स दिस इज सिंपली x माइनस वी टी। और जो y डैश आएगा दैट विल बी y, z डैश आएगा z, और t डैश हमारा क्या आएगा, t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं, अपॉन जो नीचे वाली रकम है उसको 1 लिख सकते हैं। सो टी डैश विल बी टी। तो अगर हम देखें, अगर हमने ये कंडीशन लगा ली तो x डैश हमारा आ गया x माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी। तो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस किस में कन्वर्ट होगी, ये हमारी कौन सी इक्वेशंस होती हैं, दीज आर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में चेंज हो जाती हैं। सो दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम s डैश इज वेरी स्मॉल। इसमें स्टूडेंट्स कई बार इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ जाती हैं, तो मैं दोनों पैरेलल में लिख देता हूँ। एक तरफ है हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, दूसरी तरफ है हमारे पास इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें है x डैश दैट इज इक्वल टू गामा x माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू गामा। और गामा हमारा क्या है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम लॉरेंस की ट्रांसफॉर्मेशंस का इन्वर्स लिखें तो उसमें लेफ्ट साइड पे s फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, तो वो बनेगा s इज इक्वल टू गामा x डैश प्लस वी टी डैश, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश, t इज इक्वल टू गामा, यहाँ पे आया t माइनस, उसमें आएगा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, अगेन द गामा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस डिराइव की। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इसको आप ध्यान से पढ़ो। थैंक यू।